everyone, how are you all? क्या हाल चाल? So welcome to the amazing session with your favorite DG ma'am, and the strategies for enhancement in food production is here on your screen. So we are going to start part 1 NEET CBSE 2021 के लिए we are starting with a very important chapter and the most neglected. ठीक है, if you see this chapter name आपको लगेगा अरे strategies for enhancement in food production क्या ही है, बस थोड़ी सी प्रतिक्रिया अपनानी है जिससे हम खाद्य के उत्पादन को बढ़ा सके. बट ट्रस्ट मी, देयर आर सम टॉपिक्स इन द चैप्टर व्हिच आर वेरी वेरी कंफ्यूजिंग. ठीक है, तो स्टार्ट करें with Diksha Goyal with your favorite DJ ma'am. आज का beautiful amazing session and I request each one of you to please focus. ठीक है, because focus होगा तभी कुछ फल मिलेगा आगे आपको लाइफ में. So let's just start the strategies for enhancement in food production part 1, खाद्य उत्पादन करने की प्रतिक्रिया, राइट, और रणनीतियां बेसिकली. सो थैंक यू सुमैया मैम फॉर योर लवली slides that you have made, and trust me my dear kids, you're going to love the animations that Sumaya ma'am has added. ठीक है, थैंक यू सो मच मैम. इनके बिना बिल्कुल काम आसान नहीं होता. तो एज यूजुअल वन हार्ट फॉर मैम. ठीक है, मैम के लिए एक दिल तो बनता है बॉस. तो शुरू करें आज का लेक्चर. हाउस द जोश, हाउस द माहौल इन द चैट बॉक्स, कैसा है? Chalo, come on in the chat box. Ma'am is not live, I know that, but ma'am is always there with you in the chat box. Yes or no? Everyone. मैम हमेशा चैट बॉक्स में रहती है ना, और मैंने देखा था कि कोई मुझे कह रहा था हाय दीक्षा, राइट, बिकॉज दे वर नॉट नोइंग. सो कोई बात नहीं है. सो आज के इस चैप्टर में, राइट, इन पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, my dear kids, we are going to study this many topics: management of farms and farm animals, dairy farm management, poultry farm management, animal breeding, inbreeding, outbreeding, outcrossing, crossbreeding, interspecific, then artificial insemination, moat, beekeeping, fisheries. तो पहले तो let me just tell you the chapter का concept. ठीक है, so we know that food is very very important for us. ठीक है, food not only comes from the agriculture, but the milk, the egg, the chicken, whatever we're eating, honey, okay, they also require some sort of animal care. And if you see the word animal husbandry, husbandry comes from the word actually to take care, right? And basically husband से कौन है husband यहाँ पे husband कौन है? यहाँ पे है husband farmers. ठीक है, those are working. So basically husbandry आया husband, और husband का काम क्या होता है? ध्यान रखना. तो यहाँ पे husband का मतलब होता है पति देव, नहीं farmers. Okay, so let's just start this beautiful chapter. Okay, a very interesting chapter. And ये तो वोडाफोन वाला डॉगी है. So how many of you love this वोडाफोन वाला डॉगी like this? Okay, I really love it. चलो तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेदांतु नीट मेड इजी. एंड ट्रस्ट मी, आई गेस इतने अच्छे से पढ़ाना आपको ये सिर्फ वेदांतु ही कर सकता है, राइट? यूट्यूब में वी आर पोस्टिंग लेक्चर्स एंड यू कैन सी द एफर्ट्स व्हिच वी आर पुटिंग. सो प्लीज, राइट, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, एंड ऑल पे मत भूलना क्लिक करना, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस आए, सो दैट यू डोंट मिस एनी लेक्चर ऑफ एनी टीचर, राइट? So yes, and don't forget to join our telegram group We Need Official. And remember, I had already posted the homework. ठीक है, तो in my next class we'll discuss about the homework of organisms and population, living world, and आज जो आपको मिलेगा वो. ठीक है, so together we will study that. And Sumaya ma'am already had sent one voice note, if you remember, जहाँ पे 20 क्वेश्चंस की बात हुई थी. सरप्राइज टेस्ट आंसर की नहीं है. ठीक है, आप सॉल्व करो एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट हाउ मेनी मार्क्स, राइट? तो मैम जब अगली बार मैम इज प्रेजेंट, देन आई विल जस्ट discuss the answers. Okay, so let's just go ahead and yes, get a chance to win the Vedantu t-shirts. Okay, तो ये तो आप लोगों को बहुत सारे टीचर ने बताया होगा बच्चों. ठीक है, तो ये जो बैच शुरू हुआ है 10th अगस्त से, उसके क्या क्या फीचर्स हैं? तो बेसिकली लर्न 90+ लाइव, ठीक है, बेस्ट सेशंस, rank booster quizzes. Why it is known as boosting quiz? Because they are having some extra questions. There will be comprehensive test, recorded sessions, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, अरे और क्या क्या चाहिए. एंड लाइटनिंग डील है, बिल्कुल चमकदार डील है. सो इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी मोर, 1999 में यू हैव दिस कोर्स नीट 2020 वाले बच्चों के लिए. यूज कूपन कोड DKCC. फर्स्ट गो टू द लिंक, पहले लिंक पे जाओ, पहले कूपन लगाने की कोशिश मत करना. ओके, सो टेक्नोलॉजी वाइज आई अज्यूम दैट मोस्ट ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट. vvnt.in/neetcc. ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिएगा कूपन कोड DKCC, so that you can avail the discount. So how to go, how to
यू नो गेट दैट कूपन कोड वाला कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली आप एनरोल नाउ पे क्लिक करो वेदांतु के ऐप पे, कूपन कोड पे क्लिक करो एंड देन अप्लाई द कूपन DKCC। ओके, एंड एनी बच्चा हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द नीट 2021, यस वी स्टार्टेड प्रिपरेशन एनी 2022 के लिए। सो ट्रस्ट मी, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। 1 ईयर का प्रोग्राम है, राइट फ्रॉम जीरो टिल योर एंडिंग। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है माय डियर किड्स। ओके, सो एवरी इंटरेक्टिव क्लास विल बी देयर, टेस्ट सीरीज होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, यू नो वी आर वेरी सीरियस व्हेन इट कम्स टू द क्लासेस एंड व्हेन इट कम्स टू द नीट एग्जाम्स। So link also available in description. So visit vdnt.in/ytpro, and how you can avail this again, you can select your grade. ठीक है, उसके बाद if you're in 11th standard, obviously you are preparing for NEET UG 2021, then sorry if you're in 11th standard then it's NEET UG 2022। अगर आप 12th में हो तो it's next year only 2021। so start preparing, why to wait, right? And this is a subscription for 12 months, 2252 per month। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बहुत सारी क्लासेस सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सो यस द स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म, ऑल चैप्टर वाइज माइक्रो कोर्सेज। तो इसके जो करिकुलम है आई विल टेल यू, असाइनमेंट्स होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, लर्निंग मटेरियल होगा, एंड पहले आओ फिर समझ में आएगा। ठीक है, सो उसके लिए vdnt.in, this is very important, YT Pro, use the code DK Pro my dear kids, and after using the code coupon code, मेरे नाम का कूपन कोड DK Pro, you can get a discount and this is the 1 year fee, but in this 1 year you can get so many things। फिजिक्स की टेंशन नहीं है, केमिस्ट्री की टेंशन नहीं है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वी आर here to help you, right? And yes, this is today's calendar। you already had botany zoology classes, okay, मॉर्निंग में फिजिक्स की क्लासेस हो गई आपके। ठीक है, नाउ yes, so this is the time 4:30 and strategies in enhancement of food production। ठीक है, just now I had a session live, most expected questions, menti quiz। ठीक है, and उसके बाद you have chemistry classes by Arvind sir। चलो, so yes, and one more thing, Arvind sir has given you some formula sheet if you remember। it was Sunday and I was trying very hard to come, but I just got a call at 6:30 and I was outside, so my dear kids, I'm so sorry I couldn't make it up, but I hope you have downloaded the formula sheet for biology। ठीक है, उसको देखो and if you have any doubt you can tell me। ठीक है, I am always here to help you out, मैं हमेशा आपके लिए हूँ, right? Okay, so now starting the chapter animal husbandry। तो I as I told you animal husbandry का मतलब होता है वो farmers जो animal की केयर करते हैं, है ना। husbandry is coming from the word to take care of and that is the work of a husband। अब यहाँ तो पति पत्नी होंगे नहीं है ना, यहाँ पे एक्चुअली पत्नी देखा जाए तो एनिमल्स है और द पति इज द फार्मर। सो व्हाट इज दिस एनिमल हस्बेंड्री? इट्स अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक्स। उनको ब्रीड करवाना, उनका मेटिंग करवाना एंड उनको रेज करना, अच्छे से रखना, that is what is known as animal husbandry। now the point is, what do you think animal husbandry is going to deal with? anyone in the chat box, क्या क्या लगता है कौन कौन से एनिमल्स होंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे? एनीवन इन द चैट बॉक्स, आई वांट दैट माहौल इन द चैट बॉक्स। ठीक है, बिल्कुल जोश चाहिए मुझे चैट बॉक्स में, मुझे बताओ यस यू आर करेक्ट। बफेलोज, काउज, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शिप, camel, goat, so many of them, right? So many animals, we rear them, you know, we raise them, we breed them, okay? So that is how we take care of, and what it includes और क्या है इसमें? पोल्ट्री फार्मिंग भी इसी में आता है, एग्रीड, फिशरीज भी इसी में आता है, फिश को लेके आना, यू नो कैच करना, रखना, सेल करना, राइट? शेल फिश हो, प्रॉन्स हो, क्रैब्स हो, कोई भी एक्वाटिक एनिमल हो, that is aquaculture। ठीक है, so all those things, see the beautiful picture which I have kept over here। ठीक है, फिश है, ये देखो, ये आपके वो कौन सी मूवी थी, फाइंडिंग नेमो, रिमेम्बर? My dear kids, how many of you like that movie? It was one of my favorite movie. And one more movie which I really love cartoon movies। I remember Croods। How many of you have seen Croods? Awesome, an awesome story। Okay, हंसते हंसते पेट में दर्द होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्टोपस भाई साहब, ये हो गए tortoise। So these are the animals, right, which we are taking care of। Now if I start with management of farm and farm animals, ठीक है, so I really like this animation। How many of you liked it? प्लीज वन हार्ट फॉर दिस बिकॉज ये मुझे बहुत क्यूट लगा। सो मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल से शुरू करते हैं मेरे बच्चों। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके बाद आते हैं हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहला, राइट? सो डेयरी फार्म मैनेजमेंट बेसिकली मीन्स कि मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, मिल्क के लिए, उसके प्रोडक्ट्स के लिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए, राइट? वी आर कंज्यूमिंग द मिल्क।
एनिमल्स खुद मिल्क देके खुद तो कंज्यूम नहीं करते है ना बच्चे. तो द मिल्क दैट दे आर प्रोवाइडिंग टू अस वी आर कंज्यूमिंग इट. सो इट्स आवर ड्यूटी, ठीक है, कि हम उस मिल्क के प्रोडक्शन को मतलब इम्प्रूव करें. हाउ वी कैन इम्प्रूव? व्हेन दे गेट गुड अमाउंट ऑफ फूड, व्हेन दे गेट गुड अमाउंट ऑफ वाटर, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, resistant to diseases. You can clearly understand. अगर कोई काव बीमार हो गई है, is it possible for that cow to give a healthy milk? No, it's not possible. Okay, so it actually includes the processes and systems that increase yield and improve quality of milk. Okay, how many of you like milk? वैसे I like milk with ruabsa. Okay, I really like it. I really love it. मेरा favorite है वो. And you can see this beautiful animation. Okay, so milk में आएगा आपका dairy farm management. But हम कैसे करेंगे? So selection of good breeds having high yielding potential combined with resistant to diseases is very very important. ठीक है? So डेयरी फार्म मैनेजमेंट हो या कोई भी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, पोल्ट्री हो, डेयरी हो, वी हैव टू सेलेक्ट गुड वेराइटीज, okay, of a particular species. That is the meaning of good breeds. They should have high yielding potential. अगर वो एनिमल मिल्क दे रहा है तो मिल्क में अच्छा सीजीन होना चाहिए, लैक्टोज होना चाहिए, है ना, पतला मिल्क नहीं होना चाहिए. इफ इट इज गिविंग मिल्क देन इट शुड बी कंबाइंड विद रेजिस्टेंट टू डिजीज, बीमारी नहीं होनी चाहिए उसको, ठीक है. सो हाई यील्डिंग पोटेंशियल, रेजिस्टेंट टू डिजीज, फ्री ऑफ जर्म्स, ठीक है. So many things, right? So dairy farm management और एक चीज, cattle have to be housed well. जैसे हम अपने आप को तैयार करते हैं, जैसे हम अपना अपना ध्यान रखते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, सेम वे, राइट, सेम वे वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एनिमल्स, ठीक है. तो दिस इज द नेक्स्ट पिक्चर विच यू सी, है ना. तो ये देखो गाय कैसे ये चबा रही है ना. वाई हाउ द काउ इज ईटिंग द ग्रासेस. ओके, जस्ट अ मिनट, माय किड्स. ओके, चलो. सो कैटल हैव टू बी हाउस्ड वेल, शुड हैव प्रॉपर वाटर एंड बी मेंटेन डिजीज. जैसे हमें पानी और खाने की जरूरत होती है ना मेरे बच्चों, वैसे ही वी हैव टू गिव द काउस द एनिमल्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, प्रॉपर एनवायरमेंट, मतलब अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है. एंड द फीडिंग, यस, एज आई सेड, इट शुड बी कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर. क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी. ऐसा नहीं है कि क्वालिटी तो बहुत अच्छी देती है और एक कटोरे में छोटा सा खाना दे दिया. नो, we should give them enough of food so that they can give us back the amount which we require, like milk we require, okay. So that is very 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 important, right. Now we also should ensure that जो milk transport होगा उसमें भी milk की गाड़ी, right, गाड़ी वाला आया, right. So strict cleanliness and hygiene are important while milking, storage and transport of the milk and its product. हम कुछ भी मिल्क से बनी हुई चीजें या फिर we are transporting the milk itself, we should focus that the गाड़ी should be very clean, okay, transport should be very efficient. So ऐसा नहीं है कि हमने वहां पे ढक्कन खुला छोड़ दिया and the mosquito came and the flies came. No, so you see that how much responsibility these people have, okay, and that's very important. Now if you come to poultry farm management, my dear kids, what is poultry farm management? Anyone? It's very easy. पोल्ट्री में हम सारे तरह के बर्ड्स, बर्ड्स का दूसरा नाम क्या होता है? एनीवन? द स्टॉक ऑफ बर्ड्स इज फाउल्स, ठीक है. So it's basically a class of domesticating the fowls which are used for the food or for their eggs, okay, या तो हम उनके खाने के लिए यानी कि चिकन मीट, ओके, और वे यूजिंग देम फॉर द एग्स. ये आप ब्यूटीफुल एनिमेशन देखो, जैसे हमने मुर्गियों को रखा है, राइट, ओके. So if you remember one particular song of a movie, I forgot that movie name. सलमान खान की मूवी थी यार, बहुत ही बढ़िया मूवी थी, नाम कैसे भूल गई मैं, ठीक है, बजरंगी भाईजान, राइट. तो इसमें वो एक सॉन्ग था, राइट, तेरी भूख का इलाज चिकन, कुकुरू. So how many of you love chicken, right? So yes, so and yes, coming to this turkey, very important कि टर्की जो है क्रिसमस डे में दिया जाता है. Have you heard? एंड गीज का भी एक न्यू ईयर होता है, यू माइट नॉट बी नोइंग. सो ये तो क्रिसमस डे में दिया जाता है और गीज भी एनिमल के रूप में एज अ गिफ्ट देते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द बर्ड्स, राइट. सो दिस इज अ क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स. सो पोल्ट्री फार्म में वी आर मैनेजिंग द बर्ड्स so that they can give us good amount of eggs, the proper eat meat so that we can eat, right. So how we are going to manage this? So we should select disease free and suitable breeds. Breeds का मतलब है यहाँ पे variety. For a particular species also, for a particular dog also, we can have so many varieties. Okay, we want proper and safe farm conditions. Clear? We want proper feed and water. We want hygiene and healthcare, right? So proper feed and water, hygiene and healthcare. Clear? So उनको अच्छे से खाना देना है. We have to provide them hygienic condition, good conditions. We have to make sure that the farm condition is good. ठीक है.
इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स हमें जो भी यूज करने हैं सो दैट वी कैन मेंटेन दैट एरिया फॉर देम टू लिव। जैसे हम अगर वहां पे नहीं रह सकते सो हाउ दे कैन लिव, सो वी शुड थिंक लाइक दैट। ठीक है, सो आई होप दैट इज क्लियर क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें हैं। नाउ लेट जस्ट कम टू द एनिमल ब्रीडिंग, द रियल टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जिसमें बहुत 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 कंफ्यूजन होता है। ठीक है, सो लेट जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर। इट एम्स एट increasing yields of animals and improving the desirable qualities of the product। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग क्या कर रहा है, एनिमल ब्रीडिंग में हम एनिमल की ईल्ड्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी आर इम्प्रूविंग द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, हम एक ऐसा एनिमल लेके आने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे वो एनिमल ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट अच्छा हो बट इन टर्म्स ऑफ द लाइफ स्पैन, so that we can get more amount of product from the animals। So what is a breed? Here comes a very important question, what is a breed? So a breed is a group of animals related by descent and similar in most of characters like general appearance, features, size and configuration। How many of you love dogs? Come on। But dogs में भी पहले तो ये बता दो, how many of you love dogs and how many of you has dog at home? My mother is not allowing the dog, okay, at home। So sad, right? So बहुत सारे dog के आपने breed सुने होंगे, labrador, right? German shepherd। So are they all dogs? Yes ma'am। German shepherd, rottweiler, ठीक है, pug, right? So these are all dogs. These are all belonging to a species of dog, but they are different, right? Why different? Because इनका अपना अपना एक character है। जर्मन शेपर्ड का अपना है, रॉटवेलर का अपना है, गोल्डन रिट्रीवर का अपना है, पग का अपना है। So they are known as the breeds, but breeds are of one species। Okay, so they are similar in most of the characters। अगर लैब्राडोर देखो, जर्मन शेपर्ड देखो, यू सी द रॉटवेलर, यू सी द पग, उनमें कोई ना कोई कैरेक्टर तो सिमिलर होगा ही। बट लैब्राडोर के सारे डॉग्स को आप देखोगे दे आर मोर सिमिलर टू ईच अदर एज कम्पेयर टू जर्मन शेपर्ड। बट नो डाउट दे आर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज, दैट इज डॉग स्पीशीज, राइट? सो ब्रीड का मतलब इन टर्म्स है वेराइटी, इन शॉर्ट इट्स वेराइटी। ओके, अब देखो, नाउ ब्रीडिंग कुड बी ऑफ टू टाइप्स my dear kids, a very important point। ब्रीडिंग कुड बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एक होगा आपका इन ब्रीडिंग। इन मतलब एनीवन, इन मींस विद इन, राइट? एंड ब्रीडिंग मींस मीटिंग। तो जब आप दो, एक मेल और एक फीमेल की मीटिंग करा रहे हो, ठीक है, एंड दे आर वेरी वेरी क्लोज रिलेटेड, ओके, मतलब उनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं, मतलब दादा, राइट? फिर दादा ने बच्चे दिए तीन, ठीक है, उसके बाद ऐसे ये आप अगर आगे जाते जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे और एक दो भाई हैं, राइट, तीन बच्चे, देन फीमेल्स, राइट? So let's just imagine this is female, this is male, so you can see this ancestors are linked। ठीक है, so inbreeding is animals of the same breeds and they have a common ancestors, they are very much related, बहुत ज्यादा closely related है वो। ठीक है, so for example mother wasp and father wasp, ठीक है, दोनों ही wasp को belong करेंगे and you got a male offspring। but अगर आप पीछे कंटिन्यू करोगे, if you just continue the back side, so you can find that they too have a common ancestor, they have a common ancestor। Okay, so that is the breeding between animals of same breeds which are closely related with each other। ठीक है, अब inbreeding करते करते when we are doing so much of close inbreeding, there is a particular term जो आपको याद रखना पड़ेगा my dear kids। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक डिप्रेशन हो जाता है, हाई डिप्रेशन। कैसा डिप्रेशन? इनब्रीडिंग का डिप्रेशन। कैन यू सी कि यहाँ पे इसके पास एक डोमिनेंट और रेसेसिव एलील था, यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है। अब आपने इन दोनों को मीटिंग किया, स्नेक इज अ स्नेक, विपेरा बेरस इज अ स्नेक, राइट? देन कैपिटल ए, ओके, so you can what you can find there is a red color, there is a red color snake, ultimately different सा snake आ गया। ठीक है, so what you see, कैपिटल ए डोमिनेंट एलील, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल, बट इन दोनों की ही मेटिंग करा दी बिकॉज वी वांट कॉमन एंसेस्टर्स, राइट? तो यहाँ पे इन दोनों की हमने मेटिंग करा दी, दोनों के लिए कॉमन एंसेस्टर यू कैन सी, these are the common ancestors, right? This is very very important that when doing inbreeding the ancestor should be common, okay, and 4 से 5 जनरेशन तक ये होना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली यू कैन सी recessive alleles my dear kids came together। can you see, जो एलील कभी छुपे हुए थे और जिन एलील का नामो निशान नहीं था
those recessive alleles are coming together and we are not very sure that these recessive alleles are actually helping the organism while coming together और ये कुछ नया कैरेक्टर लेके आ रहा है तो स्लोली स्लोली क्या हो रहा है इनब्रीडिंग का डिप्रेशन हो जाता है वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ न्यू कैरेक्टर एंड दिस इज actually causing a problem it could be a harmful change in the animal you can see red color ka it could be toxic also ठीक है so if this AA again is crossed with let's say इसके दोनों का crossing हुआ what you will get anyone in the chat box small a crossed with capital A small a what will be the results you will get capital A small a small a small a right again you can see so this inbreeding depression is basically leading to increase in the homozygosity if I'm not wrong I hope all of you understood so inbreeding depression के वजह से recessive alleles are coming together and you are getting increase in homozygosity so it means क्या मैम ये गलत है नहीं ये सही है unless and until you don't see that the recessive alleles which came together are creating a problem okay or unless and until for 4 to 5 generation it's very fine to get some superior qualities in the animal okay but ज़्यादा time तक हम inbreeding को नहीं कर सकते हैं because it can cause inbreeding depression as recessive alleles can come together and the homozygosity can increase okay now coming to the next concept एक हो गया inbreeding within mating एक हो गया outbreeding means outside ठीक है outside mating में I will tell you ठीक है ये कंप्लीटली अनरिलेटेड होनी चाहिए सेम ब्रीड हो डिफरेंट पीरियड हो डजंट मैटर स्पीशीज भी अलग हो सकता है ठीक है बट द कॉन्सेप्ट इज कि जो एनिमल्स होने चाहिए द एनिमल्स दो एनिमल यानी कि मेल एनिमल और फीमेल एनिमल किसी भी तरह रिलेटेड नहीं होने चाहिए दे शुड नॉट हैव अ कॉमन एंसेस्टर आइदर दे शुड बी ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स और या तो उनका स्पीशीज ही अलग कर दो एक डोंकी ले लो एक मंकी ले लो राइट सो breeding of unrelated animals which may be between individuals of same breed हो सकता है but इनका common ancestor नहीं होना चाहिए तो they should be unrelated अगर same breed है तो unrelated या तो एकदम breed ही अलग कर दो तो क्रॉस ब्रीडिंग हो जाता है या फिर स्पीशीज चेंज कर दो तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन किस किस को समझ में आ रहा है हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आउट ब्रीडिंग anyone in the chat box कुछ डाउट है आई विल शो यू वन चार्ट ओवर हियर यहाँ पे देखो ये सब आउटब्रीडिंग का रिजल्ट है कैन यू सी दैट डिफरेंट राइट सो नाउ कमिंग टू द आउटब्रीडिंग क्लासिफिकेशन राइट आउटब्रीडिंग के तीन क्लासिफिकेशन है माय डियर बच्चा पार्टी ठीक है तो यस सो फर्स्ट इज क्रॉस ब्रीडिंग देन आउट क्रॉसिंग एंड इंटरस्पेसिफिक सो विल स्टार्ट फ्रॉम आउट क्रॉसिंग then we'll go for cross breeding and then interspecific so out crossing means breed same है फॉर एग्जाम्पल लैब्राडोर में ही आपने ब्रीडिंग करवाने का कोशिश किया मीटिंग करवाने की कोशिश किया वन लैब्राडोर विद अनदर मेल लैब्राडोर फीमेल लैब्राडोर बट उन दोनों का एंसेस्टर नहीं होना चाहिए सेम दैट वाज द केस ऑफ इन ब्रीडिंग की कॉमन एंसेस्टर्स होने चाहिए ब्रीडिंग सेम नो कॉमन एंसेस्टर्स आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन ठीक है अब क्रॉस ब्रीडिंग में तो कोई टेंशन ही नहीं है हमने ब्रीड ही अलग कर दिया फॉर एग्जाम्पल लैब्राडोर क्रॉस विद अ पग तो हो गई दोनों के ब्रीड अलग स्पीशीज सेम है इंटरस्पेसिफिक में डॉग क्रॉस विद शिप तो ये स्पीशीज अलग है या नहीं है सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द आउटब्रीडिंग द फर्स्ट पार्ट ठीक है क्रॉस ब्रीडिंग सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मेरे बच्चों सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड मतलब अगर लैब्राडोर आप ले रहे हो क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हो क्रॉस विद पग तो इसका एक सुपीरियर मीन द बेस्ट फीमेल सुपीरियर फीमेल ठीक है क्रॉस विद द सुपीरियर मेल आ रहा है समझ में ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग डू यू थिंक लैब्राडोर एंड पग का कोई रिलेशन होगा स्पीशीज सेम है दैट्स इट बट लैब्राडोर इज वन ब्रीड वन वेराइटी ऑफ डॉग पग बिल्कुल अलग दिखता है वो वोडाफोन वाला पग छोटा सा ठीक है सो दिस वे क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू ब्रीड्स टू बी कंबाइंड तो मतलब अगर लैब्राडोर में कोई अच्छी क्वालिटी थी और पग में कुछ एक अलग क्वालिटी थी हमने इन दोनों को मीटिंग कराया क्रॉस ब्रीडिंग कराया एंड देन वी गॉट अ हाइब्रिड राइट a hybrid. So for example, I will tell you one condition, one situation of my family. So in my family, once upon a time, there was one dog which came actually. A person came and since my father is a businessman, right? So एक person आए और उन्होंने फिर एक dog दे दिया बोला कि इसको रख लो and that dog was a खतरनाक dog
The dog was a, I'll tell you, a hybrid of Labrador plus German Shepherd. इन दोनों का हाइब्रिड हो गया और वो इतना बड़ा हो गया वो डॉग. The way he used to bark, I was outside of my home that time. I used to call my mother and every time his name was Jackie. And उस जैकी ने ऐसा ऐसा मतलब कर दिया कि उसको फाइनली वी हैड टू लीव हिम समवेयर इन द फार्म, ठीक है, जहाँ पे उसको अपना भाई भी मिल गया, राइट. ओके, so that is all about the cross breeding, and cross breeding sometimes becomes dangerous, but we have to take care कि हमें कौन सी क्वालिटी चाहिए, ठीक है. so for example this, right, so you can tell me in the chat box ये क्या है, बताओ. ये तो गोट हो गया और ये क्या है, ये क्या है, that is your task. I will be there in the chat box to see what are you answering. चलो, so now coming to outcrossing, a very important thing. Outcrossing और inbreeding में आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बट याद रखना inbreeding में when we are meeting a male and a female, they have a common ancestor. But when you're doing outcrossing, practice of mating of animals within the same breed, but इनके common ancestors नहीं होंगे either side में. मतलब for example you started with a parent, ठीक है, एक दादाजी थे, उन्होंने बच्चा दिया, फिर इनके बच्चे हुए, एंड दिस इज वन फैमिली लाइन, ठीक है. इमेजिन दैट दिस इज समथिंग वन मोर दादाजी, but this dadaji has mated with another दादी जी, but having a different character. So you can see that इसमें ना कुछ ऐसा 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 और ऐसा 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 आ जाएगा, some changes in the character. Now if you are continuing this and suddenly ये एक hybrid ये एक breed बन जाएगा, this will be a breed and this will be again A1, let's say, दोनों को हम combine कर रहे हैं, but you see that these two breeds are नो डाउट ऑफ द सेम डॉग, ठीक है. एक ही डॉग का लैब्राडोर का ही ब्रीड ले लो या पग का ब्रीड ले, रॉटवेलर का ब्रीड ले लो, वो एनिमल सेम है बट नो लिंक हियर, ठीक है. इस लैब्राडोर ने किसी और लैब्राडोर के साथ लिंक किया था, और आई विल जस्ट टेक अ डिफरेंट कलर. हाँ जी, तो इस लैब्राडोर ने एक मम्मी लैब्राडोर से जब मीटिंग की थी, उस मम्मी लैब्राडोर की जो कलर थे वो ग्रीन कलर, रेड कलर का था, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रेडनेस आ गया. तो है तो ये लैब्राडोर सभी, बट कैन यू सी डू दे हैव कनेक्शन? नो, नो कॉमन ancestor. And this is how you have to remember. So inbreeding within, mating within the same individuals means closely related breeds having common ancestor. Outbreeding, the animal should be unrelated. If they are from different breeds, then it is cross breeding. अगर सेम ब्रीड के हैं बट कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है, तो ऑफस्प्रिंग को हम आउटक्रॉस बोलेंगे. इसका मतलब ये आपको दिख रहा है, सब आउटक्रॉस है. तो क्या ये एक ही ब्रीड से आई? यस मैम, दे केम फ्रॉम वन ब्रीड ओनली, दे हैव कम फ्रॉम द सेम ब्रीड ओनली, बट ओनली द डिफरेंसेस जब मीटिंग हुई थी तो हमने मेक श्योर किया था कि इनके कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होंगे, नो कॉमन एंसेस्टर्स. ओके, चलो. सो फॉर एग्जांपल मेरे दादाजी, राइट, उनके दादाजी, वी हैव वन कॉमन एरिया, लाइक वन कॉमन लाइन, अ पेडिग्री, और कहीं और दूसरे दादाजी होंगे, ठीक है, वो किसी और के दादाजी हैं, तो दिस इज नो कॉमन एंसेस्टर, हमारा उनका कोई लिंक नहीं होगा, but we are from the same breed. Let's see, ठीक है, चलो. So moving to the next part, the last one of outbreeding, interspecific. So obviously when you change the species तो completely unrelated हो जाएगा. You already know the mule example, all of you. Mule is a hybrid, yes, and it's infertile. Why it is infertile? Anyone? क्यों infertile है? In the chat box. Anyone? Why mule is infertile? Because इसके पास 63 chromosomes हैं, ठीक है. So horse, फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी, इफ आई नॉट रॉन्ग, यस. सो इन दोनों को हमने हाइब्रिड कर लिया. सो इट इज बिग, फास्ट, एक्साइटेबल. डोंकी जो है स्मॉल है, स्लो है एंड काम है. वी गॉट अ म्यूल, ठीक है, जिसको हम खच्चर बोलते हैं ना, सामान उठाने के लिए काम आता है, राइट. सो मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज आर मेटेड. The progeny may combine desirable features of both the parents. Okay, example is mule. So in this case, all of you agree it's a type of outbreeding because the animals are completely unrelated. Horse बिल्कुल अलग है, donkey बिल्कुल अलग है, species change हो गया, इसीलिए हम इसको a type of interspecific, a type of outbreeding which is known as interspecific hybridization. So I hope the three types are clear to everyone. Now we are moving to some artificial techniques. कुछ आर्टिफिशियल टेक्निक्स हम कर रहे हैं. अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करना. इंसेमिनेशन मतलब द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म.
Insemination मतलब transfer of sperm. Okay. So when you artificially do that, when people are artificially doing that, they're collecting the semen. What is the meaning of semen? Anyone in the chat box? क्या होता है semen? In the chat box. Semen क्या होता है? Semen collect कर रहे हैं. Semen you have studied in human reproduction. Semen is a fluid, okay, having sperm plus plasma, right? So it is collected from the male that is chosen as a parent. एक male आपने select करना है, ठीक है? So we are taking out the semen from that male because of the fertility is very high, and that is injected into the reproductive tract. For example, a female is not able to reproduce properly, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम की वजह से the sperm is not able to survive or not able to reach the fallopian tube. So we will take out the semen from the male and we will inject into the reproductive tract of the selected female by the breeder. तो breeder करेगा ये, जिनको ब्रीडिंग करानी है, जो मीटिंग करवाते हैं. So you can clearly see, ठीक है, ये देखो, right? You can clearly see how we are, with the help of needle, actually it is, dropped, right? So that is artificial insemination. One more method is MOET, ठीक है? Multiple ovulation embryo transfer, that is MOET, ठीक है? A very important, बहुत ज्यादा important है मेरे बच्चों, multiple ovulation embryo transfer. So what do you understand by the word मल्टीपल ओव्यूलेशन? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? दैट द एग्स आर मोर इन नंबर, ठीक है? सो व्हाट आर वी डूइंग? स्पर्म ले रहे हैं, ठीक है? यू कैन सी द डायग्राम ऑल ऑफ यू. स्पर्म इज टेकन फ्रॉम अ बुल, फ्रॉम अ हाई यील्ड डेयरी हर्ड. एक ऐसा हमने बुल लिया, एक ऐसा मेल लिया जिसकी क्वालिटी ऑफ द मिल्क इज वेरी वेरी हाई, ठीक है? उस स्पर्म को हमने काउ में इंजेक्ट कर दिया, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दिया, ठीक है? फिर हमने जाइगोट को डेवलप कराया इनटू एम्ब्रियो इन काउ एंड देन रिमूव फ्रॉम द यूट्रस. उसके बाद हमने उस जाइगोट को, जब एम्ब्रियो में वो डेवलप हो गया यानी फीमेल काउ में, उसके बाद वी हैव टेकन आउट एंड देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स दिस एम्ब्रियो, ठीक है? एंड फाइनली इस एम्ब्रियो को हमने प्लेस किया एक दूसरे मम्मी के, फोस्टर मदर के यूट्रस में, ठीक है? Because that is not having a proper environment, this is not having a proper environment to give birth to the baby cows, ठीक है? Right? Or the baby bulls, right? So what is MOAT का step? तो पहले तो हम FSH, you might be knowing FSH. What is FSH? Anyone in the chat box? And what is the function of FSH? It's follicle stimulating hormone, okay? Yes, a very important concept. So animal को पहले FSH यानी कि female is administered with FSH so that what will happen? Follicles mature होंगे. You remember the Graafian follicle, primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, and there will be super ovulation. So what will happen when there is super semi duper ovulation? क्या होगा जब super semi duper ovulation होगा? Instead of one egg, they're producing 6 to 8 eggs. So because in one cycle, we all know in human beings also, females also, monthly in the menstrual cycle, one egg is produced. तो जब आप FSH का amount बहुत ज़्यादा कर दोगे तो 6 to 8 eggs produce होगा, ठीक है? And ovulation के लिए तो LH is required, ठीक है? The fertilized egg, उसके बाद क्या होगा? Sperm लाएंगे, artificially inseminate करेंगे from a bull and fertilized egg which is 8 to 32 cell. ये क्या है? It could be a morula. 8 to 16 तो morula होता है, and sometimes 32 is also known as morula stage 2, right? So they are recovered non surgically. कोई सर्जरी नहीं करनी है वहां पे. We are just taking out from the same exactly same point जहां पे ये 8 to 32 cell stage होएगा, right? जहां पे भी वहां से अपन को we have to take it out. We are not doing any surgery, and then it is transferred to a surrogate mother, foster mother, and the genetic mother is available for. Now the question is why we are not inserting in the same female जिसको हमने FSH दिया था. मतलब FSH हमने उसको दिया, एग्स बनाने शुरू हुए, 6 से 8 एग बन गए. अब हम क्यों उस एम्ब्रियोज को रिकवर कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट दैट पर्टिकुलर female to be free for the another round of FSH administration, and that is why we are using some other surrogate mother or foster mother. Okay, so coming to the next point, the beekeeping. Okay, so why we are interested in beekeeping? क्या मिलता है हमें बी से? हनी मिलता है. Who can tell me the composition of honey? Anyone? ये हनी जो है वो why it is that much nutritious? Anyone in the chat box? क्यों है ये इतना nutritious मेरे बच्चों? बताओ. Anyone?
आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। मैम चेक करेंगे बेटा, ऐसे मत सोचना, ठीक है। सो हनी हैज लॉट ऑफ फ्रुक्टोज, इट हैज लॉट ऑफ माल्टोज, देखो कितनी सारी चीजें, इट हैज लॉट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। so many of carbohydrates it has, and that's why it's very very good for health, ठीक है। so what is that process where we are maintaining the hives of honeybee? क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? Maintenance of hives of honeybees for the production of honey is known as apiculture. Apiculture is a process because if you remember the honey ka scientific name starts from Apis indica, like that. So the word is apiculture. Api is belonging to honey. So honey culture means apiculture. We are maintaining the hive. Hive means मधुमक्खी का छत्ता. उस मधुमक्खियों के मधुमक्खी के छत्ते को हम मेंटेन करते हैं and production of honey is taking place. Honey is a food of high nutritive value. I told you why. Glucose, maltose, fructose, and also it finds the indigenous system of medicine में use होता है इसका. For health, honey is very good. बहुत सारे लोग पानी में मधु मिला के पीते हैं in the morning, and it also produces wax. ठीक है, वैक्स भी आता है इससे मेरे बच्चों। सो यू कैन सी वर्कर, ड्रोन एंड क्वीन। तो इसमें दो तीन चीजें जो आप हमेशा याद रखना, द वर्कर्स आर मेल, इनफर्टाइल, ठीक है, एंड द क्वीन हैज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इफ यू रिमेंबर, ठीक है। क्वीन कैन ओनली रिप्रोड्यूस एग्स, मींस ओनली गिव राइज टू एग्स। ये हो गया मधुमक्खी का छत्ता, दैट इज हाइव्स ऑफ हनी बीज, एंड ये हो गया शहद की बॉटल। चलो, सो यू कैन सी अ ब्यूटीफुल एनिमेशन। वन साइड हनी इज हनी बी इज हेल्पिंग इन पॉलिनेशन, ठीक है। एक तरफ वो अपने छत्ते को बना रही है, हनीज बना रही है, यू कैन सी दिस, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इट एक्चुअली डेंजरस एंड यू सी इट। ऐसा कभी हुआ है किसी को मधुमक्खी ने काटा है? मेरे साथ हुआ है बच्चों। आई स्टिल रिमेम्बर दोज डेज ऑफ माइन। जान निकल गई थी। चलो, सो नाउ कमिंग टू द स्टेप्स, राइट। सो यू शुड नो द नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट, कि हनी का नेचर कैसा है, हनी बी का किस टाइप की हनी बी है, पॉइजनस है, नॉर्मल है, हैबिट क्या है। यू हैव टू सिलेक्ट अ सुटेबल लोकेशन। कहीं पे भी है थोड़ी दीक्षा मैम जहाँ पे बैठी वहां पे एक मधुमक्खी का छत्ता बना देंगे, नहीं। We have to select suitable location for keeping the beehives, catching and hiving of swarms, management of beehives during different seasons, handling and collection of honey and of bee wax, keeping beehives in crop fields during flowering period increases pollination and improves the yield. So honey सिर्फ हमें honey bee या फिर honey bee is not only giving us honey wax, but they are also helping in pollination. Agreed. And उस pollination के वजह से what happens? Double fertilization, right? And these double fertilization अच्छे से होता है, so we all know crop yields increases. So you can understand the relation that how if we keep beehives in crop fields, अगर crop fields में रख दिया हमने तो flowering period के टाइम पे pollination बढ़ जाएगा, yield बढ़ जाएगी मेरे बच्चों, ठीक है। Now coming to the last topic, ठीक है, part 1 का, that is fisheries, right? What is the method of fisheries का rearing, selling, क्या बोलते हैं? Catching of fishing, rearing of them, selling of them. Anyone in the chat box? Come on, it's a very easy word. Yes, what is that? Pisciculture. In Bengali, we also called as auntie as pisci, right? This is pisciculture, okay? So you see the beautiful animation. I have never caught a fish, but I really aspire to do it same as ही, ठीक है? Fishery is an industry devoted to catch करना, process करना and sell करना. पहले catching करनी है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करनी है एंड उसको सेल करना है, या फिर फिश या फिर शेल फिश या कुछ एक्वाटिक एनिमल्स। तो फिशरी इंडस्ट्री इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री। व्हेन यू गो टू गोवा, यू माइट हैव सीन दैट, बहुत सारे एरियाज में जहाँ पे ओशंस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। सो फ्रेश वाटर फिशरीज एंड मरीन वाटर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के हिसाब से अगर आप देखो, ठीक है। दैट फ्रेश वाटर फिशेस कौन कौन से होते हैं? फ्रेश वाटर मीन्स सी, लेक्स, राइट, पॉन्ड्स, ठीक है, पॉन्ड्स, सी, लेक्स, काटला, रोहू, कॉमन कार्प। मरीन फिशेस विच आर इन ओशन, सॉल्टी वाटर में मिलता है, हिल्सा, सैर्डिन्स, मैकेरल, पॉम्फ्रेट। सो ये आपको नाम याद रखने हैं मेरे बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर किड्स। आपको सडनली कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मरीन वाटर फिश और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर फिश, so you should remember this examples which are given in your textbook, okay? अब दो तरह के कल्चर होते हैं when you come to water. एक्वा कल्चर तो बिल्कुल सब कुछ इन्वॉल्व करता है, हर तरह के एनिमल्स को। फिशरी कल्चर इज ओनली फॉर फिश, clear? So what is the blue revolution? You remember green revolution?
for the improved variety of seeds. Okay, blue revolution is implemented to increase fish production. If you remember, white revolution for milk, ब्लू रेवोल्यूशन हुआ था ताकि हम फिश के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें. कभी कभी फिशेस वर डाइंग बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी एंड दैट वाज द रीजन. सो व्हाट इज पिसिकल्चर? दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. I'm marking wherever you should understand, wherever there is an important thing in the chapter. Pisciculture is the process of growing fish and selling it or using its products for domesticated or commercial use. So you all know, या तो हम घर के लिए यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम बाहर बेचने के लिए यूज कर सकते हैं, या तो हम एक्वेरियम में भी ग्रो करते हैं फिशेस को, है ना. तो फिशेस कैन बी ग्रोन बोथ इन सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर. क्या हम एक्वेरियम वाले को पिसिकल्चर बोलेंगे? नहीं, इट्स जस्ट अ आर्टिफिशियल वे. नेचुरल वे की हम बात करें, या तो मरीन में करेंगे पिसिकल्चर, या फिर हम सी, पॉन्ड्स और लेक. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब एक्वाकल्चर पे आ जाओ. एक्वा मीन्स वाटर, H2O. सो कोई भी प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एनी एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक है तो वाटर में होगा H2O, 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 ठीक है, एंड सेलिंग देम फॉर कमर्शियल पर्पस. सो व्हेन यू कम टू एक्वाकल्चर, इट्स अ वेरी वास्ट इंडस्ट्री, ठीक है. सो यार यहाँ पे देखो, यू कैन सी, you might have seen this kind of pictures, when you come to ocean. I have seen this. ऐसे जाल बिछा देते हैं बहुत सारे एनिमल्स के लिए, तो उनको खाना भी देते हैं, दाना डालते हैं, हार्वेस्ट करते हैं एंड मेनी अदर प्रोसेस, ठीक है. द मोस्ट पॉपुलर वंस ग्रोन अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, श्रिम्प्स. ये नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. श्रिम्प्स, क्रैब, फिश, लॉबस्टर एंड फ्यू अदर. दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इनको बेचने से फायदा भी होता है, इनके हार्वेस्टिंग भी अच्छे से होती है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द पार्ट 1. सो नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर. इसमें आपको क्या क्या चीजों में प्रॉब्लम होगी. इन ब्रीडिंग मैंने आपको अच्छे से समझाया. आउट ब्रीडिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग. इन ब्रीडिंग क्या होता है, आउट ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीड क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो ये एक पार्ट था. एंड फ्रॉम फिशरीज, the names of the fishes, okay, blue revolution, aquaculture, pisciculture. honey bees में as such कुछ important नहीं है, just need to remember the name of the honey bee, ठीक है. apis indica which is mostly used, ठीक है, उनको ज्यादा हम यूज करते हैं, उनका रियरिंग करना, उनका बी हाइव्स बनाना. तो दैट इज व्हाट अबाउट दिस चैप्टर. पार्ट 1 है. तो मेरे बच्चों पार्ट 2 आएगा, ठीक है. सो विल डिस्कस पार्ट 2 इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल आल्सो हैव मेंटी क्विज वंस वी आर डन विद द चैप्टर, ठीक है. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल वी नीड मेड इजी. जब आप सब्सक्राइब कर दोगे तो यू विल नॉट मिस एनी ऑफ माय सेकंड लेक्चर फॉर द चैप्टर, ठीक है. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू अवेल दिस लाइटनिंग डील. 1999 2100 का लिफाफा बनता है, ये 2000 में मिल रहा है, ठीक है. यूज द कूपन कोड DKCC, but first go to the link vdnt.in/needcc. and if you want to join the long term pro batches, हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, so use the code DKPro, ठीक है. DK Pro यूज करना so that you can get a discount of 4769. तो जितने बच्चे मुझे चैट पे दिख रहे हैं, अगर कुछ भी बच्चे आ जाते हैं लॉन्ग टर्म प्रो बैच में, so I will be taking the classes there as well. स्टेप 1 में सब्सक्राइब करना, स्टेप 2 में क्लिक ऑन द बेल आइकन, एंड स्टेप 3 में ऑल्सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इतना लाइक करो, शेयर करो, सो दैट अदर स्टूडेंट्स आर हैविंग प्रॉब्लम विद इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, जो मैंने आपको बहुत ब्यूटीफुली समझाया है, द स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग एनी डाउट देन. एंड वी नीड ऑफिशियल पे आप ज्वाइन कर लेना बच्चों, ठीक है, to get updates regarding the classes. and I also send video message, है ना, सुंदर सा देखा होगा आजकल मैं हमने वीडियो मैसेज भेजना शुरू कर दिया है ना. सो वो भी मिलेगा आपको होमवर्क भी मिलेंगे, यू विल गेट अ सेशन रिप्ले आल्सो, नोटिफिकेशंस आल्सो. सो उसके लिए ज्वाइन कर लो यार, कुछ नहीं है, बस डाउनलोड करना है टेलीग्राम, ज्वाइन द लिंक, दैट्स इट, ओके. एंड बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज फॉर योर डीजी मैम, कैन यू डू दैट? yes. so that was all about today's session. bye bye, take care my dear kids, will meet again, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे with amazing sessions again.